Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 4. The chapter which we are related with is journal. हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है, परफॉर्मा हमारे सामने है, लेकिन इसके बावजूद भी आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू प्लीज नोट डाउन एंड प्लीज रिकॉल दीज टू rules regarding journal entries where we have described asset and expenses. ये rule हमने क्या पढ़े थे? Assets and expenses should be written on debit side, increase debit, decrease credit. Liabilities and income on credit side, if they increase, write down on credit side, decrease on debit side. This is our performer where first column is used for particular for date, then we have particulars, and then journal folio. After that we have amount in debit, amount in credit. Yesterday we have discussed you may write instead of amount, you may write rupees, or you may write debit over here and credit over here. So all three words are perfect for these two columns. Debit is okay, rupees is okay, amount is okay. Alright guys, this was brief introduction. We are now ready to start our question. Let's begin. First entry, January 1, as usual, just put date first. Then come to narration line and read. Started business with cash. Since it is short narration, so we may write same narration which is written in our book. Started business with cash. When you will start your business, cash will come in. Cash increases. Cash is your asset. Rule क्या बोलते हैं? Cash asset. Asset increase debit. So that is why you will write cash account on debit side. अभी भी मैं आपको लिख के दूंगा कि क्यों इसको debit किया, because cash is asset. Asset is increase. Any amount with which your business would be started, that amount is called capital. जिस पैसे से कारोबार स्टार्ट करें उसे कैपिटल बोलते हैं. और कैपिटल इज योर लाइबिलिटी एंड वी नो, लुक ओवर हियर, लाइबिलिटी शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड. सो हियर यू विल पुट कैपिटल. क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी में इंक्रीज हो रहा था, इसलिए आपने यहां लिख दिया. हाउ मच अमाउंट? 8 लाख. सो यू आर गोइंग टू पुट 8 lakh on debit side and 8 lakh on credit side as well. So in this way, first entry is completed. Now second entry, purchase goods for cash. This was your question number 4 and we are at entry number second. First we will put date. January 4 is your date. We will go to narration side. First we will write the narration. यहाँ भी बहुत सिंपल सी एक नरेशन लिखी हुई है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. वही नरेशन जो ऊपर लिखी हुई है वही आप नीचे लिख दें. परचेज गुड्स फॉर कैश. चीजें खरीदी हैं. गुड्स आर योर नियर एसेट्स. एसेट आर इंक्रीजिंग. खरीद जो रहे हैं तो एसेट बढ़ रहे हैं. इंक्रीज इन एसेट शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड. तो हमें यहाँ गुड्स लिखना चाहिए था. Why I'm saying in this way? Because we know in accounting we do not write goods. Instead of goods what we write? Working. काम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? Working is purchase. So just write down purchase over here. Goods आपको यहाँ से मिटाना है. ये सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया है, आपने इसको लिखना नहीं है. So यहाँ पर purchase अकाउंट आप लिखेंगे. मैं कोशिश करूंगा अकाउंट में साथ साथ में लिखूं, अदरवाइज आपने इसको अंडरस्टैंड रखना है कि हर एंट्री के साथ आप अकाउंट लिखेंगे. परचेज गुड्स फॉर कैश. चीजें खरीदी कैश के बदले में, इसका मतलब है कैश इज गोइंग आउट. कैश एसेट. एसेट डिक्रीज हो रहे हैं जाने की वजह से, इसलिए आप इसे कैश को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. कैश अकाउंट. यहाँ फिर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये एसेट था और एसेट में कमी हो रही थी, इसलिए यू हैव रिटन कैश ऑन credit side. Amount यहाँ से चेक करें. How much amount? That is 2 lakh. So just post 2 lakh on debit side and 2 lakh on credit side as well. ले जी, दो एंट्रीज कंप्लीट हो गई. अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री, दैट इज जनवरी 9. एज यूजुअल सबसे पहले आपने डेट पुट की.
Then you will go to write narration, purchase motor vehicle from Salim. Okay, तो purchase motor from Salim. अब जगह थोड़ी सी कम थी तो हम एक वर्ड खा गए हैं ताकि एक ही लाइन में नरेशन पूरी हो। यहाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव इन योर माइंड के नाम आ गया है और हमने ये बड़े अच्छे तरीके से समझा हुआ है कि whenever you will see the name is mentioned and cash is not mentioned, so we will indirectly understand that it's a credit transaction. जब भी नाम आता है वो उधार ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा जी, आप यहाँ से देखें परचेज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल खरीदी, कोई भी गाड़ी, दैट इज योर एसेट। खरीदने की वजह से एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज एंड एसेट शुड बी रिटर्न ऑन डेबिट, सो मोटर व्हीकल वुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, क्योंकि ये आपका एसेट था और एसेट में इजाफा हो रहा है, यू हैव रिटर्न इट ऑन डेबिट साइड। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम, सिंस इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये उधार थी ना ट्रांजेक्शन, सो अमाउंट इज स्टिल पेएबल, द अमाउंट व्हेन स्टिल पेएबल इज योर लायबिलिटी, सो सलीम इज अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, सलीम वो बंदा है जिसको रकम अदा करना अभी बाकी है, ये आपके लिए लायबिलिटी है या क्रेडिटर है, तो आप सलीम का नाम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये आपका क्रेडिटर है, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, और ये आपकी लाइबिलिटी है, उसमें इजाफा हो रहा है, इसलिए आपने सलीम के नाम को क्रेडिट साइड पे लिखा। सलीम इज अ पर्सन टू होम अमाउंट इज पेएबल, सलीम वो बंदा है जिसको रकम अदा करना बाकी है, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की वजह से सलीम को क्रेडिट साइड पे लिखा क्योंकि सलीम क्रेडिटर है आपका। नाउ वी विल सी द अमाउंट, सो 3 लाख on debit side, similarly 3 lakh on credit side. January 9 is completed, next entry is January 14, और ये 14 क्या कह रही है, सोल्ड गुड्स टू हबीब एज लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, आप लोगों ने चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ लिया हुआ है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए ये ट्रेड डिस्काउंट वहां पर भी आया था और हमने क्या किया था। रिपीट करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं दोबारा आपसे पूछूंगा जब भी मुलाकात होगी तो यू शुड हैव इन योर माइंड, जो आज बता रहा हूँ ये आपने लाइव जब हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होंगे तो बताना है। ट्रेड डिस्काउंट हम लिखते नहीं है अकाउंटिंग में, जैसे हम गुड्स नहीं ना लिखते, इसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते, सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। अब सोल्ड गुड्स टू हबीब, एक तो बात यह है कि कैश मेंशन नहीं है, नेम इज ओवर हियर, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दोबारा बता रहा हूं, हबीब एक नाम है, जब नाम आता है तो वो उधार ट्रांजैक्शन होती है, और सिंपली हम नरेशन में लिख देते हैं सोल्ड गुड्स टू हबीब, और यहां पर छोटा सा मेंशन कर देते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट भी इसके साथ है। सो सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 1 लाख रुपीज। पहले एंट्री करते हैं, बाद में इस ट्रेड डिस्काउंट और अमाउंट की भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट आवर एंट्री। सोल्ड गुड्स, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर योर एसेट, व्हेन यू आर सेलिंग एसेट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन एसेट शुड बी रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड, सो यहाँ पर गुड्स लिखनी चाहिए थी, लेकिन मैं बार बार एक ही बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि वी डू नॉट राइट गुड्स, इंस्टेड ऑफ गुड्स यू राइट वर्किंग। क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, वी आर सेलिंग आवर गुड्स, सो यू विल पुट सेल्स ओवर हियर। गुड्स आपने नहीं लिखनी है, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा जी, जब आपने चीजें बेची, दीज गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार बेची थी। सो हबीब इज अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, हबीब डेटर है, डेटर्स शुड बी रिटर्न इन एसेट साइड, इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां पर आप हबीब वुड बी रिटर्न ऑन डेबिट साइड, क्योंकि ये आपका डेटर है, डेटर्स एसेट होते हैं, उनमें इजाफा हुआ, इसलिए यू हैव रिटर्न नेम ऑफ हबीब ऑन डेबिट साइड। नेक्स्ट जी, 1 लाख you will put on debit side and 1 lakh on credit side. In this way your January 14 is completed. January 20 is your next entry, and as usual we will write narration first. Paid traveling expenses, ये भी छोटी सी नरेशन है तो आप इसको शॉर्ट ना करें, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख दें। पेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, व्हाट डज दैट मीन, आपने अदा किया है पैसा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के लिए,
बहरहाल कोई भी एक्सपेंस है जब आप पे करेंगे तो कैश विल गो आउट. कैश इज योर एसेट. Asset is decreasing. Decrease in asset should be written on credit side. So what you will do? You will write cash account on credit side. क्योंकि कैश एसेट था, एसेट में कमी हो रही थी, तो आपने कैश को क्रेडिट साइड पे लिखा. सेकेंडली, ये तो क्लियरली इसने लिखा हुआ है एक्सपेंस. सो एक्सपेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑन डेबिट साइड. सो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को traveling expenses account you will write on debit side. अच्छा जी, amount of traveling expenses 2000 you will write on debit side. Similarly 2000 on credit side. लें जी, आपकी 5 एंट्री थी, पांचों की पांचों एंट्रीज कंप्लीट हो गई. इट वाज अ शॉर्ट क्वेश्चन. नाउ आई विल रिक्वेस्ट इन अ वेरी हम्बल वे, इसको प्लीज घर में बैठ के खुद करें. आपने एक दफा इसको देख लिया ना, अब इसकी चीटिंग नहीं करनी है. आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आपने सुन लिया, देख भी लिया. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड आफ्टर सॉल्विंग कंपेयर योर सॉल्यूशन विद इट. और तीसरी बात यह है कि इवन अभी भी कोई मसला हो, कोई मुश्किल हो, तो आप मुझे मैसेज करें. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन क्विकली. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. इट्स टाइम टू से गुड बाय. अल्लाह हाफिज.